અગત્યના સમાચાર। વર્ષ 2025-26નું બજેટ જાહેર થયા બાદ આજે સર્કિટ હાઉસ વડોદરા ખાતે આઈસીસીના સેક્રેટરીએ બજેટના કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। તાજેતરમાં જ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષ 2025-26નું વિકાસલક્ષી અને જનહિતકારી બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આ બજેટના કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર એઆઈસીસીના સેક્રેટરી શ્રી રામકિશનજી ઓઝાએ આજે વડોદરા ખાતે આવેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બજેટમાં રજૂ કરવામાં આવેલા મહત્વના મુદ્દા અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આ દરમિયાન વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ શહેર પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષ નેતા ચંદ્રકાંત ભક્તો, કાઉન્સિલર જહા ભરવાડ, પુષ્પાબેન વાઘેલા તથા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। એઆઈસીસીના સેક્રેટરી શ્રી રામકિશનજી ઓઝાએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે બજેટના મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી। ભાજપ સરકાર પર કર્યા આકરા પ્રહાર। प्रभारी भाई रामकृष्ण जी ओझा जी, हमारा प्रमुख ऋतिक भाई जोशी, हमारा साथी डेप्यूटी झा भाई, सीनियर हमारा पुष्पाबेन, बाड़ू भाई, अलकाबेन, दरेक जग्यानी चौथी जागीर मीडिया न्याय अपावे भी ना भी अपावे कोई नक्की नहीं है ने। ये हमारा साथी है અને અમારા સુખ દુઃખના ભાગીદાર છે। અમે લોકોએ જે કોર્પોરેશનની અંદર બજેટની અંદર જે અમારી ચર્ચા થઈ એ ચર્ચાના અમુક અંશ પહેલાં આપને બતાડી દઉં કે કેવી રીતે બજેટ બનાવે છે અને કેવી રીતે શહેરને મૂરખ બનાવે છે। છેલ્લા 30 વર્ષથી શાસનમાં છે અને 30 વર્ષના શાસનમાં દરેક વખત એવું કહેવામાં આવે છે કે આ પ્રજાલક્ષી બજેટ છે। આપ તો ચોથી જાગીર છો, આપને ખબર છે કે પ્રજાલક્ષી બજેટ હોત તો આ 3 વખત પૂર ના આવ્યું હોત, 11 માણસ ના મર્યા હોત, દિવસે ને દિવસે ટેક્સ વધતો જાય છે। કોંગ્રેસના શાસનમાં 180 રૂપિયામાં 2 ટાઈમ પાણી મળતું હતું, એની જગ્યા પર 1600 રૂપિયામાં લોકોને ગંદુ પાણી મળે છે અને મળતું નથી। હાઉસ ટેક્સ 100 રૂપિયા 200 હતું, આજે 2000 રૂપિયા છે। કોંગ્રેસના શાસનમાં ઝોપડપટ્ટીમાં પાણીનું બી ટેક્સ નહોતું અને ઘરનો વેરો બી નહોતો। એવા અનેક મુદ્દાઓ છે, પણ એ મુદ્દાઓની સાથે સાથે શહેરની અંદર જે લોકોએ આ કામ મૂકેલું એમાં 2-3 કામ, એક તો બજેટના 2 પાસા હોય, એક જમા એક ઉધાર। જમા એટલે તમારી આવક, સોર્સ ઓફ ઇન્કમ કઈ રીતે વધે એના ઉપર તમારે વજન મૂકવાનું, અને બીજું હતું કે કઈ રીતે ખર્ચો કરવાનો। બજેટ બનાવે એટલે લખે અંદર કે આ વખતે અમે 1000 કરોડ રૂપિયાની જગા વેચીશું, એટલે જમીનો વેચીશું, અને વેચાય ફક્ત 20 કરોડની કે 100 કરોડની। પાણીની આવક તો કે 400 કરોડ થશે અને થાય 100 કરોડ। હવે અનેક જગ્યાઓ પર ડેફિસિટ આવે છે અને પછી રિવાઇઝ બજેટની જ્યારે જાય ત્યારે એને આંકડા વધારી દે છે, એટલે એ પેલું 6000 કરોડનું બજેટ થઈ જાય। સાહેબ લોકોને મૂર્ખ સમજે છે, લોકોને એવું સમજાવવા જાય છે કે ભાઈ અમે બજેટ 6000 કરોડનું બનાવ્યું છે। અરે 6000 કરોડનું બજેટ બનાવ્યું હોય તો નાગરિકોને સુવિધા તો આપો। એ બજેટને શું કરવાનું છે, નાગરિકોને સુવિધા નહીં આપી શકે। હું તમને 2-3 આંકડા તમારી પાસે મૂકું છું। એક સંજયનગરનું મેં સભામાં પ્રશ્ન ઉપાડેલો। સંજયનગર ગરીબ ઝોપડપટ્ટી, સંજયનગરના નામ પર એમનું બાવડું બી હતું, ત્યાં એને લોકોને ભરમાઈ અને 2200 થી 2300 ઝૂંપડા તોડી નાખ્યા અને રેકગ્નાઇઝ કર્યા 1841ને। એમને એવું કીધું કે તમને 18 મહિનામાં ઘર મળી જશે અને દરેકને 2-2000 રૂપિયા ભાડું આપવામાં આવશે। સાહેબ 2-2000 રૂપિયા ભાડું આવતા પહેલાં ત્યાં ભિક્ષુકની જગા નીકળી, કારણ કે આમ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરીની અંદર સર સયાજીરાવ ગાયકવાડે મૂંગા પ્રાણીઓનું, પક્ષીઓનું બધાનું ધ્યાન રાખેલું। એમાં એક ભિક્ષુક બી હતા જેની જમીન ત્યાં નીકળી। આ જમીન જ્યારે આપી તમે તો અધિકારીઓને ખબર નથી કે આ ભિક્ષુકની જગા છે? એ અધિકારીઓને કેમ સસ્પેન્ડ નહીં કર્યા ભાઈ?
ચલો એ બી વાત માની લીધી આપણે, 2-3 વર્ષ કામ બંધ રહ્યું, પછી કામ 3 વર્ષ માટે ફરી આપ્યું અને એવું કીધું કે 36 મહિનામાં તમને ઘર મળી જશે અને 2000 રૂપિયા ભાડું થઈ જશે, આપવામાં આવશે. સાહેબ, ગરીબ ઝૂંપડપટ્ટીમાં ઓછામાં ઓછા 100 થી 150 માણસો મરી ગયા ગરીબ. 3 વર્ષનું ભાડું બાકી છે, 22% કામ થયું છે અને હજુ સુધી લોકોને ઘર મળવાના નથી. એ હકીકત છે. એ મુદ્દો ઉપાડ્યો. મેં કમિશનરે કીધું તમે આ બ્લેકલિસ્ટ કેમ કરતા નથી, તમારી ભાગીદારી છે. આ મેં સભામાં કીધું છે અને બીજા ડાપણ કરતા હતા. મેં કીધું તમારી ભાગીદારી છે આની અંદર. કેમ નહીં આપ્યા ગરીબોને ઘર? કેમ નહીં આપ્યા તમે 2,000 રૂપિયા? આ વાત અમે કોર્ટમાં બી લઈ જઈશું અને આ મુદ્દાને અમે આગળ કરીશું. બીજો મુદ્દો અમારો હતો કે હરની બોટકાંડની અંદર 12 બાળકો ઓફ થઈ ગયા, નિર્દોષ, એમની હત્યા કરવામાં આવી છે. એ બાળકોની જે બોટની અંદર 12-14 માણસ બેસાડવા જોઈએ એની જગ્યા પર 28-28 માણસો બેસાડ્યા. शिक्षिका बचावा गई तो ये भी मरी गई. आज इस प्रेस सभा में उपस्थित बड़ौदा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय ऋत्विज जी, हमारे वडोदरा महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता जो बड़ी ताकत के साथ कॉरपोरेशन में मुद्दों को रख रहे हैं, ऐसे भत्तू भाई, हमारे उपनेता पुष्पा बहन तथा तमाम हमारे महानगर पालिका के सम्मान्य सदस्य और यहाँ पर उपस्थित आप सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि भत्तू भाई ने विस्तार में आपको हाउस के अंदर जिस तरह से मांगे हमने रखी, जिस तरह से उन्हें 30 सालों से जिस तरह से बजट उला रहे हैं और बजट लाने का तरीका और खर्च करने के तरीका के बारे में जनता के सामने खड़ा करने के लिए पूरा प्रयास पूरी ताकत के साथ भत्तू भाई ने अपनी बातें रखी. बड़ौदा एक ऐतिहासिक शहर है और बड़ौदा शहर में जिस तरह का भ्रष्टाचार और कोहराम मचा हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है. जिस शहर ने भाजपा को पहचान दी, जिस शहर ने 2 सीटों से 300 सीट पहुंचाने का काम किया और जिस राज्य ने के नाम पर, विकास के नाम पर पूरे देश में सत्ता हासिल की, उस शहर की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख होता है. शुरुआत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे, मैं शुरुआत अगर कहूँ कि जब से टोल टैक्स ऑक्ट्राय शहर का जो बंद हुआ है उसके बाद से जो आवक होनी चाहिए थी, जो पैसा 18% के आसपास का जो रेवेन्यू जो लॉस हुआ है, जो राज्य सरकार हर राज्य में अपने शहरों को दे रही है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा धोखा जो राज्य सरकार इस शहर के साथ कर रही है वो ये है कि जो 18% 2007 से जो भरपाई जो ऑक्ट्रा के माध्यम से इस शहर को विकास करने के लिए ये पैसा जो शहर के लिए आता था, उस पैसे का दोहन राज्य सरकार ने किया है. करीबन 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपया इस शहर को राज्य सरकार ने तुरंत देना चाहिए, ये हमारी मांग है. ये दुर्भाग्य की बात है कि राज्य का मुख्यमंत्री आकर इस शहर में घोषणा करके जाता है कि इस शहर का हम विकास नहीं कर पाए, इस शहर का विकास नहीं हुआ है. कितनी दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिए शहरवासियों के लिए भी दुर्भाग्य की बात है. कई ऐसे मुद्दे हैं. गैस डिस्ट्रीब्यूशन का एक यहाँ पर काम हुआ करता था महानगर पालिका के माध्यम से, वो इनकम वाला साधन था कॉरपोरेशन के लिए और उस इनकम वाले साधन को बंद कर दिया गया और गेल को दे दिया गया. ठीक है, अच्छी बात है, हमारी नवरत्न कंपनी है, उसे भी दिया तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसके अंदर काम करने वाले हजारों कर्मचारी, 1000 के ऊपर कर्मचारी थे मेरे अंदाज से, उन कर्मचारियों को वापस महानगर पालिका में भेज दिया गया. उसकी भी लायबिलिटी जो इतने वर्षों की पड़ी है कॉरपोरेशन के ऊपर में, हमारी गेल से भी मांग है कि उसकी भी भरपाई जो है, ये 1000 लोगों की जो तनख्वाह कॉरपोरेशन दे रही है महानगर पालिका, उसकी भरपाई भी गेल ने राज्य सरकार के माध्यम से करनी चाहिए, हमारी दूसरी मांग है. विश्वामित्र नदी के बारे में आप सब जानते हैं, आप सब लोगों ने बहुत नज़दीक से महसूस किया है. मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि ये
बहुत ही दर्द की बात है कि जिस शहर में राजा अगर व्यापारी हो गया हो तो प्रजा का भिखारी होना कोई रोक नहीं सकता। नदी के किनारे के पाट जो होते हैं, हम पाट बोलते थे पहले, किनारे, उस किनारों को राज्यकर्ताओं ने, सत्तासीन लोगों ने अपने मित्रों को, अपने ठेकेदारों को, अपने स्वार्थ के लिए और अपनी आलीशान जिंदगी गुजर करने के लिए पाटों का इस्तेमाल किया है। जब तक ये पाट के का कब्जा नहीं हटेगा, मैं ये नहीं समझता हूं कि विश्वामित्र नदी का प्रकोप इस शहर से जा सकता है। ये प्रकोप चलेगा जब तक ये पाट की व्यवस्था ठीक से नहीं करेंगे और उस जगह की सफाई नहीं करेंगे, उस जगह पे सही ढंग से बांध का निर्माण नहीं करेंगे, उस जगह ढंग से ये जो उसकी साइड की दीवार है वो नहीं करेंगे, जब तक ये हो नहीं सकता। ये ठेकेदारी प्रथा कब तक कमाएंगे? 30 वर्षों से आप अपने मित्रों के पेट भर रहे हैं। कितना पैसा चाहिए? ठेकेदार करोड़पति थे, लखपति से करोड़पति हो गए, करोड़पति से अब्जोपति हो गए। शर्म करिए, थोड़ा सा जनता के ऊपर ध्यान दीजिए कि इस विश्वामित्र नदी के प्रकोप से इस शहर को बचाइए। नवला वाला समिति ने 3000 करोड़ की एक रिपोर्ट महानगर पालिका को, राज्य शासन को दी है। उसको नजरअंदाज करके 1200 करोड़ रुपए का बजट, मुझे जैसा कि बताया गया, ये बजट 100 दिन में खत्म करने का प्लान मेरे ख्याल से महानगर पालिका ने किया था। लेकिन आज तक मैं समझता हूं कि अभी तक विश्वामित्र नदी पे ऐसा कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। मेरे साथी अगर कोई बताए तो नहीं हुआ। पुष्पा बहन भी यहाँ बैठी, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपसे पत्रकार महोदयों से निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि लूटपाट कब तक, ये लूटपाट कब तक चलेगी? 11 लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु नहीं कह सकते, इसको हत्या कहना चाहिए। और 11 लोगों की हत्या का दोष इस महानगर पालिका पे लगाना चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री पे लगाना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं गुजारिश करता हूं अमित शाह जी से कि इन दोनों पे कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री पे भी कार्रवाई की जाए और महानगर पालिका पे भी कार्रवाई की जाए कि इस तरह से इनकी गलतियों का खामियाजा और जनता के पैसे की लूट कब तक चलेगी इस शहर के अंदर? अब इस शहर के नाम पे, जात पात के नाम पे सत्ता में आ जाते हैं, पैसे के बल पे जनता के नाम पे आ जाते हैं, उसी पैसे को नदी से कमाकर उसी पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काते हैं। ये सारे बंद करने पड़ेंगे। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। 30 वर्षों के शासन से आपने इस शहर के अंदर में कोहराम मचा रखा है। आप पावागढ़ से पिंगलवाड़ा तक ये नदी का लंबाई है जो 100 दिन में पूरी करना चाह रहे थे, वो अभी तक हुई नहीं। हरनी बोट कांड, फिर से वही बात, पीपी मॉडल पे आप लोग जिन लोग काम देते हैं, जिन लोगों से पैसा उगाही करते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि इन पे कार्रवाई करेंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। अरे कम से कम इतना तो ध्यान रखिए, हमारे शहर के लोग मर रहे हैं। 12 मासूम बच्चे उस बोट पर मर गए हैं। क्या कारण था उसका? उस दिन तो बाढ़ नहीं थी। आप जिस तरह से जिन लोगों को पैसा लेके काम दे रहे हैं पीपी मॉडल पे, वो लोग क्या काम करें, उन पे भी राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है। जवाबदारी के साथ साथ जवाबदेही बनती है कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो ध्यान नहीं रखने वाले लोगों पे कार्रवाई की जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए और उन पे कोर्ट में कानूनी तरह से उन पर काम किया जाए। इस देश के अंदर में जब से संविधान बना है, हमारे राजा महाराजाओं के समय से भी और गायकवाड़ महाराज के समय से भी पानी पिलाना धर्म का काम समझा जाता था। लेकिन शहर में पानी पिलाना धर्म की बात तो दूर, लूट खसोट हुई जा रही है। एक गरीब आदमी को अगर आधा इंच का पानी कनेक्शन दिया जाता है तो उसकी प्लॉट के साइज से उससे पैसा लिया जाता है। एक समय था, ठीक है, पुरानी बात है, 30 साल पहले 180 रुपये में हम पानी दिया करते थे। गरीब स्लम को, गरीबों को हम फ्री में पानी देते थे। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, कितनी होनी चाहिए? 180 से 200 हो जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए, 1200 1800 रुपये आप ले रहे हैं। लूट की कोई हद होती है। ये कानूनी एक
हर नागरिक को अधिकार है मूलभूत सेवाओं का। इस देश के अंदर में स्वच्छ जल देने का, पीने का अधिकार नागरिक का है और स्वच्छ जल पुराने का जवाबदारी और जवाबदेही सरकार की होती है, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो। इससे भी वो भटक चुके हैं। पूरी तरह भ्रष्टाचार वहां हो रहा है, लूट मचाई जा रही है। जहां आधा इंच 1 इंच का पानी जिस घर में कनेक्शन नहीं है उससे भी शायद पैसा लिया जाता है, ऐसे बताया जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? मुझे लगता है इस शहर की जनता को कोई ऐसी जादू की छड़ी से महानगर पालिका के चुनाव के समय भाजपा कोई तो भी ऐसा जादू की झड़ी घुमा देती है तो लोगों को इस बात का ध्यान नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार इनसे मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। चाहे छोटा प्लॉट हो चाहे बड़ा प्लॉट, पानी का बिल चाहे आधा इंच कनेक्शन हो चाहे पौन इंच कनेक्शन हो, भरपूर पैसा वसूल किया जा रहा है। सफाई कर्मियों को की हालत खराब है, शहर में सफाई नहीं हो रही। मैं जहां जहां से आया हूं कचरों का अंबार लगा हुआ है। इस शहर को सिर्फ रंग बिरंगे लाइट और रंग बिरंगे कलर लगाकर आप चमका नहीं सकते। वो आंखों के लिए अच्छे हैं। रात की रोशनी में आपको अच्छे रंग के लाइट अगर नदी पे, पुल पे, सड़कों पे लाइट पे दिखेंगे तो इसका मतलब आपका शहर स्वच्छ है या अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। शहर के लोगों को बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता है। शहर के लोगों को अच्छी बसेस की आवश्यकता है। शहर के लोगों को बस समय पे आए उसकी आवश्यकता है। शहर के लोगों को अच्छी और सही तरीके से चलने वाली, अच्छे रोडों पे चलने वाली बसों की आवश्यकता है। शहर के लोगों को अच्छे स्वच्छ पानी की आवश्यकता है। शहर के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पतालों की आवश्यकता है। यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ अच्छी लाइटें लगा दो शहरों में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम कर दो, अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े से सजा दो, अच्छे धार्मिक कार्यक्रम है तो बड़े बड़े खर्चे करो, अच्छे अच्छे रंग रोगन कर दो। इससे नहीं चलेगा। ये कब तक चलेगा? एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे कार चलाने वाला हो, चाहे मजदूर हो, उसकी प्रथम आवश्यकता है उसे अच्छा जीवन, अच्छा परिसर, अच्छे रास्ते, अच्छी स्कूल, स्वच्छ सेवाएं, अच्छा साफ सुथरी नालियां, गटर जल्दी साफ होने वाले और अच्छी अच्छी स्कूलें। ये बुनियादी आवश्यकता है। आप हजारों करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ का बजट आप बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि 6,000 करोड़ का अभी का बजट है तो पूरे 5 वर्षों में 25,000 करोड़ तो इन्होंने खर्च कर ही दिए होंगे। ठीक है, बत्तू भाई ने बताया कि 3,000 करोड़ आते हैं, 6,000 करोड़ का बजट बताते हैं। लेकिन अगर 6,000 भी होते हैं तो मैं समझता हूं उसमें 80-100, अगर 100 करोड़ का किसी मद में खर्चा करना है तो 50 करोड़ ही खर्चा होता है। 50 करोड़ सिर्फ उसको ठेकेदारों को काम लेट हुआ करके उसको बढ़ोतरी के रूप में दिया जाता है, लेकिन वो 50 करोड़ रुपए जनता की भलाई के लिए खर्चा नहीं होता।